नमस्कार। आज 11 अगस्त और ये शेयर बाज़ार का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज वीकली एक्सपायरी है और परसों बाज़ार में छुट्टी थी, तो जो मंथली सेगमेंट के 9 शेयर्स बुधवार के दिन रखता हूँ तो वो मैं आज रख रहा हूँ। सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों की बात कर लें तो आज का चंद्रमा मकर का है और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र है। तिथि शुक्ल पक्ष की 14 है और कुछ लोग रक्षाबंधन आज भी मना रहे हैं। और जो हमारे पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय में है उसमें रक्षाबंधन कल मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन पवित्र भगवान को और गुरु जी को चढ़ा दिया गया है, दे दिया गया है। बाज़ार की बात में ऑलरेडी मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ये रजिस्टर का पेज शेयर कर ही दिया है, स्टेटस में भी रख दिया है। तो जो शेयर्स और RSIs है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अदानी इंटरप्राइजेस RSI 84 80 के ऊपर का RSI अदानी इंटरप्राइजेस का है। तो अब यहाँ से ये नीचे आ सकता है, क्योंकि कल भी 90 की मंडी थी, 2834.90 का इसने हाई बनाया था। लेकिन बाकी सब कैलकुलेशंस के साथ जो मैंने दिया है तो उससे लगता है कि अभी भी इसमें कुछ गुंजाइश है। जो कॉल पुट के आंकड़े हैं तो 2900 2950 तक कॉल राइटर ऊपर में लेके बैठा हुआ है, तो वहाँ तक जाने की उम्मीद है। और जब RSI 80% है तो एक महीने में 24% का रिटर्न भी दिया हुआ है। इसको 9-20 पे रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 2800 पे आके रुक रहा है और बंद 2827 पर है। तो इसके लिए इसको एक बार देखना पड़ेगा 9-20 पे। 9-20 का इंतज़ार करेंगे। और बाकी सब शेयर वीडियो को डिस्कस करने के पहले यहाँ पे कुछ बात मैं अपने गुजराती कम्युनिटी के लिए गुजराती में कहना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। काले આપણા ખડાઈતાના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં આપણે જોયું હશે કે એક મારો મેસેજ મેં મૂકેલો કે આપણા મુંબઈવાળા બિપિનભાઈ નરસાણા આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને મળેલા અને એ ફોટો શેર્સ કરેલો। ડિટેલ્સમાં તો કોઈએ પૂછેલું પણ હતું શેનું હતું શું નહીં, તો બ્રીફમાં 1 લાઇનર આન્સરમાં જવાબ એમને પણ આપેલો અને મેં પણ એમાં જે એમના જ કહેવાથી મને ખબર હતી એ વસ્તુ મેં પણ ગ્રુપમાં શેર કરેલી। આપણા ખડાઈતાઓ માટે ખરેખર એક ગૌરવની વસ્તુ છે। મેટર એવી હતી કદાચ એમનો પ્લાસ્ટિક કે કેમિકલનો બિઝનેસ છે અને 194R TDSનું જે સેક્શન છે કે જેમાં ટેક્સ કાપનાર સામેવાળો કઈ ટેક્સ કેટેગરીમાં સ્લેબમાં આવે છે એને જોવાનું રહેતું નથી અને 10% જે ટેક્સ કાપવાનું પ્રોવિઝન છે તો કદાચ એના માટે એ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિ તરીકે ગયા હશે અને જે તે કંઈ હતી તે વાત કરી હતી। બિપિનભાઈ નરસાણા જોડે મારું વ્યક્તિગત ઇન્ટરેક્શન રહેતું હોય છે। મેં મારા એક આગળના પણ વિડીયોમાં કહેલું હતું કે દિવાળીનું બેસતું વરસ તો હોય છે જ, જે આપણે એકબીજાને વિશ કરતા હોઈએ છીએ, પણ જ્યારે અંગ્રેજી નવું વર્ષ થયું અને એના પહેલાં જ રવિવારે એમનો મારા ઉપર શુભેચ્છા પાઠવતો ફોન એ રીતના આવેલો હતો। અને બસ જેમ બીજા બધા મળેલા છો એમ હું પણ બિપિનભાઈને ફોનથી કે ગ્રુપમાં જ મળેલો છું। સામસામા બેસીને ચાની પ્રસાદી પણ લીધી નથી, પણ તે છતાં જે મને મોટિવેશન કરે છે મારા કોલ્સ જ્યારે સક્સેસ જતા હોય છે, તો એ માટે મારી પાસે કહેવા માટે કોઈ શબ્દો નથી।
આપણે બધા બહુ સજાગ ને એ રીતે છીએ, પણ એક વસ્તુ જે કદાચ મને ખૂંચી છે તે કહું છું કે મારો જ મેસેજ ટ્રોલ કરીને બધાએ કોંગ્રેચ્યુલેશન લખ્યું. ખરેખર કોંગ્રેચ્યુલેશનના પાત્ર તો બિપિનભાઈ છે, નહીં કે હું, કે બધામાં યુ દેખાતું હતું. કોઈ એક કે બે જણા ન્યારા હતા અને સાચા પણ હતા મારી દૃષ્ટિએ, કે એમને પોતાનો વ્યક્તિગત મેસેજ બનાવી અને મૂક્યો. અને આ ખાલી આ ગ્રુપમાં ને આની માટે નહીં, મેં બીજા ગ્રુપમાં પણ હું મેમ્બર હોઉં છું અને બીજી પણ કોઈ વાતમાં હોય છે તો એવું લાગે કે જવાબ જે મુદ્દઈ છે ઓલ એબાઉટ એ ડોગ, એક કદાચ હેજી ગાર્ડિનરનું નામ છે, હું ભૂલતો ના હોઉં. ઇંગ્લિશમાં એક વાર્તા હતી કે એક બેન બસમાં યાત્રા કરી રહેલા અને એમનો કૂતરો એમની સાથે હતો. એટલે કોઈ પેસેન્જરે ઓબ્જેક્શન કર્યું. આ અમેરિકા કે ઇંગ્લેન્ડની વાત છે, આપણે ત્યાં તો એટલી સજાગતા હોય પણ નહીં. એટલે કોઈ બીજા પેસેન્જરે એનું ઓબ્જેક્શન કર્યું, પણ જેમનો કૂતરો હતો, હવે એમને તો કૂતરાને લઈ જ જવાનો હોય, એટલે બંનેની ચડસાચડસી થઈ. અને લેખક એમાં લખે છે કે ઓલ એબાઉટ એ ડોગ, જેના માટે ચર્ચા થતી હતી એ તો કુરકુડિયું આંખો ટમટમાવતું હતું, એને તો કોઈ ફરક હતો નહીં. કે જેના માટે ચર્ચા થતી હતી એનું તો કશું હતું જ નહીં. એટલે જો હું ખોટો હોઉં તો મારી સમજ પણ દૂર કરશો કે ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર, કોંગ્રેચ્યુલેશનને પાત્ર બિપિનભાઈ છે. અને મેં કહ્યું એમ કે હું એમને ઓળખતો નથી, કે સાથે કોઈ ચા પાણી નાસ્તા પાણી આપણે કર્યા નથી. એમાં મોડી આવશે, જરૂર પ્રસાદી જોડે લઈશું. મેં મારે ફોન કોલ્સ ચાલુ જ રહેતા હોય છે. ફોન કોલ્સ આવ્યા અને હું હકથી કહી શકું. અને એક નોર્મલ હતું કે મેં કહું ભાઈ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ તો લખી દો એમાં, પણ જેને મેં કહ્યું એને તો નથી જ લખ્યા. બોલો, જ્યારે કે આપણો શેર બજારનો જોક્સ છે કે માણસ એની પત્નીનું ના માને પણ શેર બજારના દલાલનું માને, તો મારી આટલી વાત પણ કોઈએ ના માની, કે જેની હું અપેક્ષા કરતો હતો કે એ કોંગ્રેચ્યુલેશન લખે. મેટર મારી નથી, પણ ગ્રુપમાં કોણ એમને કોંગ્રેચ્યુલેશન લખે છે અને મારો માનીતો, મારો ઓળખીતો એમને લખે છે કે નહીં, એની નજર જેમ વર્ષો પહેલાં દિવાળી કાર્ડ જોઈને લોકો બાજુમાં મૂકી દેતા હતા, પણ આ વખતે આ મુહૂર્તનું કાર્ડ ફલાણાભાઈનું નથી આવ્યું, ચંપકભાઈનું નથી આવ્યું, નટુભાઈનું નથી આવ્યું, એમ યાદ કરે પણ આવે તો જોઈને બાજુ મૂકી દે. તો એ મેસેજ ઉપર મારી પણ નજર હતી કે કોને કોને કર્યું છે ને કોને, તો જે બાકી હોય તે એમને વ્યક્તિગત પણ કરી શકે છે, ગ્રુપમાં લખવું પણ એવું કંઈ જરૂરી નથી. અને એક ભાઈ કદાચ બહુ અતિ ઉત્સાહમાં આવી ગયા અને જે આપણે ટાઈમ વધારો કર્યો છે એના પછી પણ લખ્યું, એટલે બીજા એડમિન શ્રી એમને રિમૂવ પણ કરી દીધા છે. હવે એમને પાછા કેવા કેમના લેવા એના માટે વિચારીશું આપણે કે પાછા એમને કેવી રીતના લઈ શકીએ. તો બિપિનભાઈ મને ખૂબ મોટિવેટ કરે છે અને એમને હું મારા દિલથી અભિનંદન આપું છું. અને હવે પાછી આપણી બજારની વાત અને આગળનો वीडियो हिंदी में चालू रखिए. जो दूसरा मेरा शेयर्स है वो एक्सिस बैंक का है. एक्सिस बैंक आप लोग भी जानते हो कि मेरा बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में कॉल्स इस चालू महीने में रहा है. उसमें एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, नीचे बजाज ऑटो भी है, और बजाज ऑटो में भी RSI 62 का है. जब मैंने पहली बार दिया था तब 52-53 था, और उस समय भी किसी ने मेरे को रिमार्क भी किया था. सीखने को मेरे को भी मिलता है. और कल की जो बात थोड़ी अब रह जाती, देखिए मेरे से भी, कि मैंने उनको दिया और ये रजिस्टर में तैयार कर रहा था, तो अपने ग्रुप में शायद 240 या पूरे 300 के आसपास के मेंबर्स हैं. तो हर 5 मिनट में जो भी मैसेज पढ़ता कांग्रेचुलेशन जो भी, तो मेरे को बार बार वो देखना पड़ता, आंसर बार में आ जाता था कि किसी का कांग्रेचुलेशन का मैसेज आके. और तो और उसमें परसों एक नए दोस्त मिले, और मेरी उस समय मेरे मामा के लड़के से बात चल रही थी, छुट्टी थी, 1 घंटे तक बात चली. मेरी बात पूरी हुई, वो रुके और बोले कि आप शेयर बाज़ार का जानकार हो, ये सब करते हो. हमने कहा देखिए यही सब चीज़ बातचीत हो रही थी.
मामा के लड़के से सामाजिक और वो सब। तो उनको भी मालूम पड़ा कि मेरे को ज्योतिष का नॉलेज है, तो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बोली। मैंने कहा कि अभी तो मैंने मोबाइल उस दिन चार्जिंग में रखा था। मैंने कहा चार्जिंग में रखा सॉफ्टवेयर मेरा इसके अंदर है, मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं तो हमको तो इतना याद रहता ही है कि कौन से साल में कौन सा ग्रह किधर था। कोई यदि कुंडली हमने उस साल की भी देखी है तो कुंडली देख के मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो कल एक तरफ रजिस्टर का तैयार करना और उनकी कुंडली तैयार करना। वैसे तो उस दिन उनका हाथ देख के भी थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन हमने कहा हाथ की रेखाएं हर 3 महीने में बदलती है, और उससे अच्छा ये हमारा बाज़ार की तरह चार्ट का हॉरोस्कोप रहता है, वो चार्ट का काम करता है, और उसको देख के मैं आपको बताऊंगा कि आपके उसमें क्या है क्या नहीं है, कि कौन से ग्रह कमज़ोर है, कौन से ग्रह मजबूत है, किसको कौन से अंगूठी पहनने से या क्या करने से। मैं कुछ बेचता नहीं हूँ, लेकिन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि क्या है, और वो भी कर दिया मैंने। तो बजाज ऑटो जो 5% रिटर्न दिया हुआ है, और महीने का हाई 4091 बनाया है पिछले 3 महीने में ही। एक्सिस बैंक की बात करें तो वो भी 65 का RSI है, और उसके लिए तो बोला ही था कि 867 से ये वापस आया है, और ये भी जो जैकपॉट का काम करते हैं उनको करोड़पति बना सकता है। AU बैंक ने तो एक्सिस बैंक से भी ज़्यादा 1 महीने में रिटर्न दिया 10.84 का, और उसका RSI 55 है, जैसा कि बजाज ऑटो का तो दिया था तब था। लेकिन उसका जो ईयर हाई है, वो कभी होता है ना कि महीना बदलता है तो फिगर्स बदल जाती है। तो जो मेरे चार्ट के हिसाब से तो 733 ईयर हाई और 462 का लो है, लेकिन पिछले 3 महीने में 1313 का भी हाई गया है, और 565 का वो है, या मैं भूल ना रहा हूँ तो शायद इसका एक्स डिविडेंड या टुकड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी शायद ये रेट का डिफरेंस है। फिर कल यदि मैं देता तो HDFC मेरा जैकपॉट कॉल होता, लेकिन आज दे रहा हूँ, और आज भी वो जैकपॉट कॉल की श्रेणी में है। लेकिन फिर बात आती है लेवल की कि काजू कतरी कौन देगा, कितना देगा। तो HDFC में भी वही बात है कि उसका रेजिस्टेंस 2380 और 2398 पे बंद है। तो एक बार इसको भी 920 पे फ्रेश आंकड़े 5 मिनट की जो कैंडल आप लोग देखते हो, तो 5 मिनट का चार्ट या कैंडल देख के उसको फिर कंसीडर करना पड़ेगा। ITC राजा बाबू 72.24 का RSI, और एवरेज से 1 रुपया कैश में बंद है, लेकिन फ्यूचर में 1 रुपया ऊपर बंद है। और इसके लिए तो सीधा मोटा सा मतलब बोला ना कि शेयर बाज़ार में जो खाली डीमेट अकाउंट खुलवाया होगा और उसने कोई भी शेयर नहीं लिया होगा, तो वो भी बोल देगा कि ITC तो रोज़ 1 रुपया बढ़ेगा। तो भी मैंने बोला ना कि तो 400 450 तक चला जाएगा। लेकिन पहला आखिरी कॉल राइटर 340 पे बैठा है, तो 335 का इसलिए मैंने पहला नज़दीक का लक्ष्य दिया है। तो 335 तो आराम से चला जाएगा। और सबसे ख़तरनाक शेयर जिसको बोल सकते हैं कि जिसका RSI 30 के नीचे 26 का है, टोरेंट फार्मा का। तो टोरेंट फार्मा का दिन के वाइज देखें तो सब सही है कि 1546 की कल की एवरेज है, उसके नीचे बंद हुआ है। फ्यूचर में 1546 है। 10 दिन के एवरेज 1527 है, उसके ऊपर है। 20 दिन की 1507 है, तो उसके भी ऊपर है। और 50 दिन की 1467 है, तो उसके भी ऊपर है। लेकिन मामला फंस रहा है खाली RSI में। 5% पूरे मंथ में भी रिटर्न दिया है, जितना कि हम शायद सेविंग या FD में भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक स्टॉक या अनिल कुंबले की स्पिन की तरह होगा, गिरे का किधर और स्टंप कौन सा ले जाएगा, तो इसको ज़रूर देखना पड़ेगा। क्योंकि रुपीस के कंसिडरेशन में फार्मा सेक्टर और IT सेक्टर ये दोनों फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि फार्मा का या IT का अपने पास आज एक ही शेयर लिया हुआ है, और वैसे तो मंथली पोजिशनल में शुक्रवार या शनिवार को मैंने जो दिया था उसमें दिया ही हुआ है, तो वहाँ तक तो जाने की तैयारी है, लेकिन स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके। फिर महारथी रिलायंस भी कल ट्रैप हो गए 90 की मंडी में। 2589 90 का
हाई बनाया और उसका 2817 तक को तो चार्ट के हिसाब से दिखता है, इसीलिए मैंने बोला है कि उसका ईयर हाई 2856 तो क्रॉस नहीं करेगा शायद, लेकिन 2817 तक तो जा सकता है और चला भी जाएगा तो मुनाफा होने वाला कौन रोक सकता है। लोग तो 4800 तक की चाय की केटली पे बात करते हैं, तो देखते हैं कि वो कब आता है। और निफ्टी की भी लोग बात करते रहे हैं कि 2022 में 22,000, अभी तो एक बार 18,000 कुदाने के भी लाले पड़ गए हैं और अभी इतना हेवी स्तर पे चल गया है तो एक बार नीचे भी आएगा। उसमें भी वो सिकंदर की कहानी की तरह है कि पूरी दुनिया में जीत लूँगा लेकिन कोई रहेगा नहीं तो राज किस पे करूँगा। यदि मंदड़िए सब चले जाएंगे तो तेज़ी वाले क्या करेंगे, या मंदड़िए ही आ जाएंगे तो तेज़ी वाले कहाँ जाएंगे। तो बाज़ार इतना तेज़ी वाला है तो मंदी वाले को भी थोड़ा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, जिलाना पड़ेगा, सांस देनी पड़ेगी। तो थोड़ी मंदी कभी भी आ सकती है आने देना, क्योंकि अभी दिवाली के तो पूरे 75 दिन है। आज यदि रक्षाबंधन के 15 दिन और फिर भादो और गुजरात के हिसाब से गिने तो आज तो 24 अक्टूबर की है और आज 10 अगस्त को बात कर रहे हैं, तो 21 दिन इधर के, 30 सितंबर के 51 और 24 दिन अक्टूबर के, तो 75 दिन की दिवाली है। तो बहुत ऊपर नीचे, बहुत बार झूले में ऊपर भी जाएंगे नीचे भी आएंगे, दोनों चीज़ होगी। और ढोलक बजाने में मज़ा आता है ना, एक तरफी तबला बजाने में मज़ा नहीं आता है, ढोलक का मज़ा ही कुछ है और है। और फिर दूसरा है जो IRCTC, जो पिछले उनका रिज़ल्ट 5 क्वार्टर से अच्छे ही आ रहे हैं और मैं कहीं पे पढ़ भी रहा था कि जो उसका ईयर आई है 1280, उसको क्रॉस कर जाने तक की भी उसकी कैपेसिटी है। 14% रिटर्न दिया उसने एक महीने में और 72.92 का अच्छा RSI है। और सब दिनों की एवरेज देखें तो कल 668 के एवरेज से बंद हुआ है, 68 एवरेज रहा लेकिन बंद हुआ 673 पे। फ्यूचर उसका 1 रुपया ज़रूर कम रहा है। 10 दिन के एवरेज 637 और 20 दिन की 624 और 50 दिन की 629। अभी एक दिन में 14 रुपया बढ़ा है। मान लीजिए 14 रुपया नेगेटिव कैलकुलेशंस करके चले धीरे तो 659 आएगा। तो अपना पहला नियरेस्ट है वो तो 637 है, तो 646 644 के स्टॉप लॉस से जो उसका सपोर्ट 633 का बता ही रहा, मैं तो 10 रुपया ऊपर बोल रहा हूँ। और उसमें भी 9:15 बजे देखना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस उसका 651 बता रहा चार्ट के हिसाब से। लेकिन हमको लगता है या तो मेरे पास आंकड़े अपडेट नहीं हुए होंगे और मैंने लिया है तो, और 3 महीने में 654 से 678 तक गया हुआ है, सॉरी 568 से 744। और कल का ईयर हाई डे हाई 678 था, तो यदि डे हाई क्रॉस करता है तो इसमें भी अच्छा रहने की उम्मीद है। बाज़ार चालू होने के पहले यदि आप ये वीडियो देख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो बाज़ार पूरा भी हो जाएगा तब भी देखेंगे तो ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। और मेरी चैनल पे आप पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल के बटन को दबा दीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो जब भी मेरे वीडियो नए आएंगे तो मैं आपको ग्रुप में या इंडिविजुअल भेजूँ उसके पहले आपको खुद भी आपकी यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगे। नमस्कार।